मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ से ले लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, mechanism of respiration. So we are discussing this topic, mechanism of respiration. It includes subtopics, that is breathing, breathing involved two processes: inspiration and expiration, which we have completed in previous lecture. Breathing, then external respiration, external respiration and internal respiration and cellular respiration. So mechanism of respiration involving breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration, 4 steps. So which we have completed? Out of this we have completed breathing. Breathing involved two processes, inspiration and expiration, and today we are going to discuss external respiration. External respiration. So today's topic of discussion is external respiration. External respiration. Alveolus is lined by simple squamous epithelium. Resting on basement membrane. Each alveolus is lined by simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium means single layer of squamous epithelium resting on basement membrane, and each alveolus is intimately associated with dense network of blood capillaries. So each alveolus is intimately associated with dense network of blood capillaries. So this is alveolus. It is alveolus and it is lined by
single layer of squamous epithelium, means simple squamous epithelium, in this way. And this squamous epithelium is resting on basement membrane. It is resting on basement membrane. Epithelium tissue is always have a structure, that is, cells are resting on basement membrane. In epithelium or epithelial tissue, this is basement membrane, always basement membrane is there, and cells are resting on basement membrane, like this. And types of epithelium is depend on size and shape of cells. Types of epithelium is depend on shape of cells. In the squamous epithelium, cells are scale-like, means cells are very thin, scale-like, scales, fish scales. In cuboidal epithelium, cells are cube shape. In columnar epithelium, cells are tall like a column. In ciliated epithelium, cells, free end of cells have hair like cilia, so it is called ciliated epithelium. So in this way, type of epithelium is depend on shape of cell and also layer of cells. In simple epithelium, cells are single layer. In compound epithelium, cells are multi-layered. So understand, each alveolus is lined by single layer of squamous epithelium. So squamous epithelium, it is very thin epithelium, and the cells are resting on basement membrane. So this is alveolus. And alveolus is intimately associated with dense network of blood capillaries, means it is surrounded by network of blood capillaries, and that network is very dense. So this is blood capillary. This is blood capillary which surrounds alveolus. Blood capillary is also made up of single layer of squamous epithelium resting on basement membrane. This is blood capillary. It is also lined by single layer of squamous epithelium. So this is blood capillary, and this is alveolus. Blood capillary contain blood, and in blood RBCs are present. So these are RBCs, red blood cells. These are RBCs, means red blood cells or red blood corpuscles. Any difficulty?
blood from pulmonary artery, blood from pulmonary artery, and from here blood goes to pulmonary vein. This is alveolar membrane, alveolar membrane. This is alveolar membrane, and this is capillary, blood capillary. Together they form respiratory membrane. Together they form respiratory membrane, and this is surface fluid. This is surface fluid. So let us discuss this topic in detail, that is external respiration. So we have completed the structure of alveolus. Each alveolus in lungs is lined by simple squamous epithelium, and this squamous epithelium is resting on basement membrane. Each alveolus is intimately associated with dense network of blood capillaries. Capillaries, which is in association of alveolus, have similar structure as that of alveolus. Now, next point. Wall of blood capillary is also made up of simple squamous epithelium, simple squamous epithelium resting on basement membrane. Alveolus is lined by simple squamous epithelium resting on basement membrane. Blood capillaries also lined by simple squamous epithelium resting on basement membrane. So both the membranes have similar in structure. So both the membranes have similar structure, Both the membranes means wall of alveolus and wall of blood capillary. Both the membranes have similar structure. They are thin walled. And together
they form respiratory membrane. Together they form respiratory membrane. Together they form respiratory membrane. Any difficulty? So in this way we have completed the structure of alveolus and structure of associated blood capillaries. Now, diffusion of respiratory gases that is O2 and CO2 takes place from the area of higher partial pressure to the area of lower partial pressure until the two regions reaches equilibrium. Diffusion means exchange of respiratory gases. So diffusion of respiratory gases takes place from the area of higher partial pressure to the area of lower partial pressure until the two regions reaches equilibrium. इसको एक्सप्लेन कर दूँ. रेस्पिरेटरी गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होगा? डिफ्यूजन का तो डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ gases, liquid and solid from their higher concentration to the lower concentration. यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन गैसेस का हो रहा है. कौन से गैसेस? रेस्पिरेटरी गैसेस मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जहाँ उनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उस रीजन से लो पार्शियल प्रेशर जहाँ होगा उस रीजन में उनका क्या होगा? डिफ्यूजन होगा. मतलब जहाँ वो ज़्यादा है उस रीजन से जहाँ वो कम है उस रीजन में वो क्या होंगे? डिफ्यूजेस होंगे, है ना. कब तक उन किस लिमिट तक उनका डिफ्यूजन होगा? जब तक दोनों रीजन में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक. दोनों रीजन में पार्शियल प्रेशर जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक. मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ CO2 मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, मतलब यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पर. ठीक है ना बेटा. तो CO2 का जो डिफ्यूजन है ये मेम्ब्रेन दिखाया हमने. समझ लो ये मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन.
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन बनाता है? तो एल्वियोलस की वॉल एंड ब्लड कैपिलरीज की वॉल दोनों मिला के क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर इस तरफ ज़्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर इस तरफ कम है। ये है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो CO2 का डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ ऐसे होगा। समझ में आया? यहाँ से CO2 यहाँ डिफ्यूज़ होगा। कब तक डिफ्यूज़ होगा? देखिए यहाँ पर मैंने क्या प्लस माइनस को हटा दिया, मतलब अब क्या हो गया, इनका दोनों रीजन में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। एनी डिफ़िकल्टी? O2 का भी ऐसे ही होगा। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ले लेते हैं हम, ये कार्बन डाइऑक्साइड का लिया, ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस लिखा, यहाँ पर मैंने माइनस लिखा, मतलब इस तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इस तरफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, PPO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है उस रीजन से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, जहाँ पर उसका कम है। कब तक होगा? जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक। अब क्या हो गया? दोनों तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? इक्वल है, इक्वलाइज हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन तब तक इनका डिफ्यूजन होना चालू ही था। हो गया? आगे चले। ये पॉइंट पूरा समझा कि नहीं समझा? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टेक्स प्लेस फ्रॉम द एरिया ऑफ higher partial pressure to the area of lower partial pressure. कब तक? Until the two regions reaches equilibrium. Any difficulty? सबसे लास्ट डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ले लेंगे, ये समझ में आया तो डायग्राम इजीली समझ में आ जाएगी। पार्शियल प्रेशर of CO2 of blood in capillary is 45 mmHg, मिलीमीटर, यह है मिलीमीटर, Hg मतलब मर्क्यूरी। प्रेशर किससे मेज़र करते हैं? प्रेशर हमें पता है, ब्लड प्रेशर स्पिग्मोमैनोमीटर से मेज़र करते हैं, है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किस में? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड इन कैपिलरी is 45 mmHg, while partial pressure of carbon dioxide of alveolar air is 40 mmHg। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है एल्वियोलर एयर में। ये एल्वियोलस है, एल्वियोलस में एयर है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, कितना है? 40 mmHg।
कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है 45 mmHg। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा, देखिए इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलर एयर, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। एल्वियोलस से कहाँ जाएगा वो, ब्रोंकियोल्स से टर्शरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस से प्राइमरी ब्रोंकस से ट्रकिया से कहाँ जाएगा, ट्रकिया से जाएगा पहले वो लैरिंगोफेरिंग्स, फिर जाएगा ओरोफेरिंग्स, फिर जाएगा नेजोफेरिंग्स, फिर वहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा, वहाँ से इंटरनल नर्स, फिर नेजल चेम्बर्स, फिर एक्सटर्नल नर्स से बाहर। इतना समझ में आया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड इन कैपिलरी is 45 mmHg, while partial pressure of carbon dioxide of alveolar air is 40 mmHg. So, therefore, carbon dioxide diffuses from capillary to alveolus। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट कहाँ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होगी फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलस, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, ये जो डिफ्यूजन है रेस्पिरेटरी गैसेस का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पर। जहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है उस रीजन से, जहाँ पार्शियल प्रेशर कम होगा उस रीजन में रेस्पिरेटरी गैसेस का डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे ऑक्सीजन का। partial pressure of oxygen is 40 mmHg in blood of blood in capillary। कैपिलरी में जो ब्लड है उस ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर है, कैपिलरी में जो ब्लड है उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन of alveolar air is 104 mmHg। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में कम है एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
एल्वियोलर एयर में ज़्यादा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, एल्वियोलर एयर में ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड जो है कैपिलरीज में, इस कैपिलरीज के ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच है, जो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलती है। ये डायग्राम का कनेक्शन जो है इस कैपिलरी का बाद में बनाते हैं ना, अभी यही पढ़ लेते हैं ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा कहाँ है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एल्वियोलर एयर में। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम कहाँ है? देखिए इस कैपिलरी में जो ब्लड है वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। कितना कम है? बहुत ही कम है, 40 mmHg। इसीलिए तो हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, इसमें इसका ऑक्सीजन लेकिन बहुत कम है, 40 mmHg इतना का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। और एल्वियोलर एयर में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? 104 mmHg। तो इसलिए क्या होगा बेटा, इसीलिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन diffuses from alveolus to capillary। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? एल्वियोलस टू कैपिलरी। इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? देखिए ये ऐसे दिखा दिया, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आया एल्वियोलस में, कैसे आया? फिर से वही, पहले एक्सटर्नल नर्स से नेज़ल चेम्बर, नेज़ल चेम्बर से इंटरनल नर्स से नेज़ोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई से गए ब्रोंकियोल्स से आए एल्वियोलस में। तो ये जो एल्वियोलस है हरदम ऑक्सीजन से भरा पड़ा होता है, बहुत ऑक्सीजन होता है एल्वियोलस में। तो नेचुरली एल्वियोलस का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा ही होता है, और ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो इसलिए यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये देखिए कहाँ डिफ्यूज़ हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा ब्लड में, कैपिलरी में। यहाँ दिख रहा मुझे आरबीसीज में गया ऑक्सीजन। कहाँ गया ऑक्सीजन? आरबीसीज में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज से कहाँ डिफ्यूज़ हुआ है, मतलब ब्लड, कैपिलरी ब्लड से कहाँ डिफ्यूज़ हुआ है? तो एल्वियोलस में। इस तरह से होता है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आया आपको? यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, डायग्राम के कुछ लेवल अभी बाकी है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन समझ में आया आपको, सरफेस फ्लूइड यहाँ पर रहता है। कैपिलरी को यहाँ से मिटा के हम कैपिलरी को यहाँ लेबल दे देते हैं। ये कैपिलरी ही है पूरी, ये पूरी कैपिलरी है, ये पूरा कैपिलरी का पोर्शन है। ये जो है ना, ये यहाँ लिख लिया मैंने, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलस टू कैपिलरी। यहाँ क्या लेबल दे देते हैं? यहाँ आप बता सकते हो यहाँ क्या लिखना चाहिए? यहाँ लिखना चाहिए डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैपिलरी टू एल्वियोलस। समझ में आया?
ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स exchange of gases at alveolar level. Exchange of gases at alveolar level. alveolar level पर है हम। अभी हमने ये मैकेनिज्म कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा हमने कि ऑक्सीजन अब ब्लड में गया तो कहाँ गया, ब्लड के कौन से कंपोनेंट के अंदर वो ऑक्सीजन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला है यहाँ से, कौन से कंपोनेंट से निकला वो हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन में। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये तो सिर्फ मेम्ब्रेन लेवल पे हुआ है। डायग्राम का नाम क्या होगा, डायग्राम का नाम है एक्सचेंज ऑफ gases between alveolus and capillary। कैपिलरी मतलब कैपिलरी में क्या है, ब्लड है। अब ये डायग्राम में ये जो यहाँ लिखा है मैंने, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, ये लिखा है ना ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक इसको मिटा के एक्सप्लेन कर देती हूँ। हार्ट अपना 4 चेम्बर का है, ये वाला हार्ट है, ये है वेंट्रिकल्स 2, और थोड़ा थोड़ा हम हार्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो अभी इतना नहीं, थोड़ा सा इसको, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी देखिए बाहर आ गई, ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। एंड ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी देखिए इधर से, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स में। ये छोटा हो गया, इसको बड़ा निकाल दो, लंग्स में चला जाता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, फिर इसका डिवीजन होता है आर्टेरियोल, है ना, इसका डिवीजन होगा ये डिवाइड हो जाएगी आर्टेरियोल में, फिर आर्टेरियोल डिवाइड हो जाएगा कैपिलरी में, यही वो कैपिलरी है। इसका डिवीजन हो जाएगा ना, ये डिवाइड हो जाएगी आर्टेरियोल, ये छोटे छोटे ब्रांचेस है आर्टेरियोल, फिर आर्टेरियोल के छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिलरी। आर्टेरियोल के ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, कैपिलरी। यही कैपिलरीज है जो एल्वियोलस को सराउंड करते हैं। समझ में आया ना बेटा, समझ लो ये एल्वियोलस है। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ से आया, ये ब्लड आया फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से। राइट एट्रियम ने पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप किया, पल्मोनरी आर्टरी से गया पल्मोनरी आर्टेरियोल में, पल्मोनरी आर्टेरियोल से गया पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो इसलिए ये जो ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, ज़्यादा है। कितना है, 45 mmHg, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इसमें बहुत कम है। कितना है, 40 mmHg, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर देखिए, फिर यही जो कैपिलरी है, देखिए सेम कैपिलरी है वो, यही जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी से बनती है वेन्यूल। क्या बनती है इस कैपिलरी से, वेन्यूल। कैपिलरी मिला के ऐसे जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज यूनाइट होके इससे बनती है वेन्यूल, ये बन गई वेन्यूल। कैपिलरीज मिला के वेन्यूल बन गई।
कैपिलरीज मिला के क्या बन गई, कैपिलरीज मिला के वेन्यूल बन गई। ये जो वेन्यूल है, फिर वेन्यूल्स यूनाइट होके उससे बनेगी पल्मोनरी वेन। वेन्यूल्स यूनाइट होके उससे बनेगी पल्मोनरी वेन। एंड ये जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन ओपन होगी लेफ्ट एट्रियम में। कितने पल्मोनरी वेन्स होते हैं? 4। ये 2 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से आते हैं, लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे। एंड ये जो 2 पल्मोनरी वेन्स है, ये राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे, इस तरह से। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। लेकिन अब हम तो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये यहाँ तक तो डीऑक्सीजनेटेड था, लेकिन अब इसके बाद क्या हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत कम था। इसीलिए जो एल्वियोलस में जो ऑक्सीजन था, अब वो ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज़ हो गया? कैपिलरी ब्लड में। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ जा रहा है? ये ब्लड जा रहा, ब्लड गोज टू पल्मोनरी वेन। ब्लड गोज टू पल्मोनरी वेन। कहाँ जा रहा है ये ब्लड? ब्लड जा रहा है पल्मोनरी वेन को। कहाँ जा रहा है ये ब्लड? ब्लड जा रहा है पल्मोनरी वेन को। तो ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? तो इस तरह से ये पूरा अपना जो टॉपिक है आज हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।